On to the big story this evening. The very essence of Ram, as chronicled in Ramcharitmanas, has been set ablaze, hurting the Astha, the faith of several belonging to the Hindu community. This act of what many devout call sacrilege by the OBC Mahasabha has been linked to the Samajwadi Party. And we say this because it was in support of SP Maurya that some of these people resorted to burning copies of Ramcharitmanas. This act was committed after Akhilesh's Neta called the holy book anti-Dalit and discriminatory. Amid 10 people booked for promoting enmity and disrupting law and order, SP Maurya too has been booked for incitement. Incidentally, he is not just feted and backed but even promoted by his party boss Akhilesh Yadav. Swami Prasad Maurya has been elevated to the post of National General Secretary of the Samajwadi Party. He also, remember, faces a bounty of 21 lakh rupees announced by the Mahant of Hanumangarh. While such extrajudicial calls for retribution are unacceptable, there are those who question the way Samajwadi Party is purportedly awarding him for insulting the Hindu faith. After he was booked for incitement, Times Now in fact confronted the SP General Secretary. Watch how he remains brazenly defiant. सरकार के दबाव में एफआईआर कितनी भी हो जाए, अगर हम महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं, तो ये बात चलती रहेगी। एक नहीं, 1000 एफआईआर हो जाए तो भी सच कहने से पीछे नहीं रहेंगे। उसमें अरेस्टिंग हो गई पुलिस ने अभी 2 मिनट पहले ही मैसेज दिया है कि 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो इसमें 5 आरोपी मुझे भी गिरफ्तार कर ले। जब मौके में मैं था ही नहीं तो मेरा नाम कैसे आ गया? मैं तो उल्टा पुलिस पर एफआईआर करवा दूंगा। जब जिस घटना से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं, जिस घटने में मौके में मेरी परछाई तक नहीं गई, उस एफआईआर में मेरा नाम कैसे आ गया? अब स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की विरोधी है। इसलिए महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने वालों के साथ भाजपा खड़ी है। तो आप इनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे? इसमें भी कोई शक, अभियान चलता रहेगा। और कार्रवाई होगी तो? सच की बात करना अपराध नहीं, किसी पुस्तक का विवादित अंश निकालने की मांग करना अपराध नहीं, महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात करना अपराध नहीं। That's how SP Maurya remains brazenly defiant. Despite the outrage against him, Akhilesh Yadav continues to back him, instead hitting out at the BJP for politicizing it. Others in the ecosystem too have banded together to either justify or turn a blind eye towards this alleged affront. मैं आपसे कह रहा हूं, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूं। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। स्टेटमेंट दिया, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कोई खिलाफत नहीं कर रहा ग्रंथ की, ना भगवान के खिलाफ है, ना रामचरितमानस के खिलाफ है। लेकिन ये बीजेपी वाले ये बताएं उनके नेता क्या क्या कहते हैं। जो लोग अपने जाति और समाज के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनके समाज को भी चाहिए उनका साथ देना चाहिए। मैंने शुरू से एक बात कही कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के समाज का कोई भी मौर्य उनके विरोध में नहीं आया। मैं समझता हूं कि सबको अपनी बात रखने का हक है। अगर किसी का अपमान हो रहा है और वो उस पर अपनी आवाज उठा रहा है, तो उसको सुना जाना चाहिए। It is internal matter of Samajwadi Party whether he was appointed as General Secretary or whatever is, but I strongly condemn his statement. Nobody has any right to criticize any holy book. Whether you believe it or you don't believe it is not important. Millions and millions Indians, they believe this book. It is a holy book and nobody has any right to criticize it.
So those are the kind of political reactions that have been coming in, but questions being asked of the Samajwadi Party since day one, ever since SP Maurya first made those remarks against Ramcharitmanas. The BJP now, ever since the elevation took place, ever since SP Maurya was made the National General Secretary of Samajwadi Party, have called out the party once again and Akhilesh Yadav for trying to stay relevant by spewing hate. जानते हैं उनके पास कहने को कुछ बचा नहीं है। सब फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, चुके हुए लोग हैं। जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। केवल सामाजिक वैमनस्यता फैला करके वो अखबार में आना चाहते हैं। जनता उनके असलियत को अच्छी तरह समझ चुकी है। Let's open this up. We have Prashant Patel, Umrao spokesperson of the BJP with us, along with the Samajwadi Party spokesperson, Mr. IP Singh. Mr. IP Singh, my first question is to you, because this is the most obvious question that is today being asked of the Samajwadi Party. The same Samajwadi Party that had a problem when a BJP leader went ahead with certain remarks against a certain religious leader, the Samajwadi Party wanted action being taken against that particular person by the BJP. The same Samajwadi Party was not okay with the idea that Yogi Adityanath referred to Sanatan Dharm as the Rashtra Dharm. But the same Samajwadi Party will not condemn or rather take any action against SP Maurya, rather elevate him. उनका तो पद बढ़ा दिया गया सर, नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना दिया उनको. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट में योगी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर उनको सुन लीजिए। जग में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना। तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के। जी बताइए हमें, ये मेरे सवाल का जवाब कैसे था आईपी सिंह जी? राम और निषाद राज का जो जन्म है वो मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ट कामी जग में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना। तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के। देखिए सवाल ये खड़ा होता है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का आदित्यनाथ जी की सरकार में मंत्री है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चारों भाइयों के बारे में उनके पिता के बारे में साफ साफ कह रहा है कि उनका अस्तित्व ही नहीं था, उनके पुत्र ही नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी उसी अयोध्या, उसी रामचरितमानस, उसी के आधार पर सत्ता के शिखर तक पहुंची है। सवाल ये खड़ा होता है कि आपका मंत्री बना हुआ है, आप एक बार उस पर सवाल नहीं करते। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो चौपाइयां लिखी हैं उस पर आपत्ति दर्ज करी, तो उस पर बीजेपी अपने एजेंडे पर लेकर चर्चा कर रही है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं, आपका सवाल भाजपा से है तो पटेल उमराव साहब आपको जवाब देंगे, पर आप मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए सर। आप भाजपा की राजनीति तो नहीं खेलते हैं ना सर, आपकी खुद की राजनीति है, आपका खुद का आइडियोलॉजी है, आपका खुद का स्ट्रैटेजी है, तो आप उनको थोड़ी फॉलो करेंगे। आप मुझे बस ये बता दीजिए कि इस डिसीजन के पीछे क्या लॉजिक है ऐसे वक्त पे जब सपा के ये जो नेता हैं एसपी मौर्य, जिन्होंने कभी सुनिए आईपी सिंह जी सुनिए, सपा के ये जो नेता हैं एसपी मौर्य, ये पहले भी काफी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एसोसिएटेड रहे हैं। आज तक उनसे हमने ऐसा बयान नहीं सुना है, अब जाके ऐसा बयान क्यों? पहली बात। दूसरी बात, अगर ये बयान आया है, इतना आक्रोश दिख रहा है, लोग सड़कों पे उतर आए हैं, उनके सपोर्ट में रामचरितमानस की कॉपीज जला रहे हैं, वो सब देखते हुए आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट हिम सर, यू आर एलिवेटिंग हिम, यू आर गिविंग हिम अ रिकॉग्नाइज्ड पोजीशन इन द पार्टी। देखिए, बीजेपी और आरएसएस पिछड़ों को, दलितों को शूद्र मानती है। यही कारण है कि 21वीं सदी में सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा इस समाज को। ये समाज बिल्कुल अपनी लड़ाई छोड़ दिया। इसीलिए देखिए, अक्सर सुनने को मिलता है, अक्सर देखने को मिलता है कि अगर कोई दूल्हा घोड़े पर चढ़ जाता तो उसको पीटा जाता है, मारा जाता है, उसको सताया जाता है। वो पिछड़े वर्ग के हैं। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि भाजपा रामचरितमानस में विश्वास रखती है, रामचरितमानस को अपना ग्रंथ मानती है,
इसीलिए सपा के नेताओं को ये छूट दी गई है कि ऐसा बयान दे सके? कि आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये भाजपा से रिलेटेड नहीं है सर, जितने भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं हमारे देश में, ये उन सब से रिलेटेड है, तो इसमें भाजपा कहां से आ गई? देखिए, रामचरितमानस जीवन पद्धति है। देखिए, रामचरितमानस एक जीवन पद्धति है, एक हिंदुओं का एक बड़ा धार्मिक ग्रंथ है। हमारे जैसे लोग प्रतिवर्ष रामचरितमानस का पाठ स्वयं करते हैं, पूरा परिवार करता है, गांव-गांव होता है, कस्बे-कस्बे, शहर होता है। आपत्ति इस पर नहीं है। राजनीति स्वामी प्रसाद मौर्य जी के इस कथन पर हो रही है कि उन्होंने कहा कि ये चौपाइयों पर हमारा विरोध है, तो हम भी तो वही बात कर रहे हैं कि एक कैबिनेट मिनिस्टर राजा दशरथ के अस्तित्व को इनकार दे रहा, उस पर वही रट लगाए बैठे हैं सर। जो मैं सवाल पूछ रही हूँ आप वो सवाल का जवाब दे नहीं रहे, सीधे तौर पे आप भाजपा से सवाल ले रहे। चलिए मैं उनको आपका जवाब देने के लिए टाइम देती हूँ। प्रशांत पटेल उमराव, प्लीज रिस्पॉन्ड टू व्हाट मिस्टर आईपी सिंह इज सेइंग। See, Palki ji, Article 25 of the Constitution give rights to every citizen to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. You are free to follow any religion, practice your belief, but you don't have right to hurt the sentiment of people of any religion or the people who follow any certain belief. If you don't follow Ramcharitmanas, you are free to follow any other book. And you are by doing this act, you are hurting sentiments of Hindu community. And the character of Samajwadi Party is this, that this is the party which ordered to fire on the Kart Sevaks. Samajwadi Party opposed Ram Mandir. Samajwadi Party always gives such statements against the Hindu community. And this act of Samajwadi Party and Swami Prasad Maurya, Mr. R.K. Verma MLA and his national spokesperson Rajkumar Bhatti, all these people are giving a statement on behalf of Akhilesh Yadav. And you have no right to hurt sentiments of Hindu community. One side, before election, you go temple and temple. You say we are Hindu. You put tika on your forehead. And after election, you all do all these acts. चुनावी हिंदू का आरोप लगा रहे हैं आईपी सिंह जी आप पे। प्रशांत पटेल जी बोल रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम पर तो सबको हिंदू आस्था की याद आ जाती है, उसके आसपास भूल जाते हैं, और वोट्स के लिए कुछ गिनती के वोट्स के लिए ये राजनीति खेली जा रही है, ये स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है समाजवादी पार्टी की ओर से, क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी तक कुछ कठोर शब्द नहीं यूज किए एसपी मौर्य के लिए। निषाद ने जो कुछ कहा उस पर ये क्यों मौन है? कोई भी बोलने को बीजेपी का तैयार नहीं है, ना आरएसएस का कोई तैयार है। संजय निषाद ने राजा दशरथ के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। वो मंत्री बने हुए हैं, उन्हें कब बर्खास्त करेंगे आप? जी संजय निषाद जब राजा दशरथ ही नहीं तो रामचरितमानस कैसे? He has independent political party. He is minister in our government. I am not authorized to give statement on his behalf. But Swami Prasad Maurya is MLC from Samajwadi Party. He contested election from Samajwadi Party. And Akhilesh Yadav is supporting his statement. We are not supporting a statement of Sanjay Nisad. You've been given the maximum time, the last couple of minutes, and not one straight answer from you, sir, on why this kind of a long rope is being given by the top party leadership. As far as SP Maurya's statements are concerned, not one straight answer, direct answer. And I'm afraid if all of this is being done for vote bank, for appeasement, it's something that's extremely worrisome and a pattern that is being repeated across, not just from the Samajwadi Party. We've seen certain leaders from Bihar also come out with these kind of statements. Let's see how this plays out. Thank you, gentlemen, for joining us with your perspective on this big story. We continue to track that very closely. In the meanwhile, shifting our